हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली बेटा बहुत अच्छे होंगे। देखिए, अभी तक आपने जो कुछ पढ़ा है इस चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स में, मैंने अभी आपको जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ाया है। ठीक है, अब ज़रा इसमें देखते हैं आगे। केमिकल काइनेटिक्स ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या। इट्स अ काइनेटिक्स ऑफ केमिकल प्रोसेसेस, इट्स अ काइनेटिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस, it is a kinetic of chemical changes. Kinetics, motion, rate, change with the time, change in concentration with the time, change in pressure with the time. That means when a chemical reaction is occurred, what type of changes that takes place in the chemical variables like concentration, pressure, number of moles of the reactants and products. Okay, so let's see what is rate of reaction. रेट ऑफ रिएक्शन को अगर आपने समझना है बेटा, डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएजेंट्स और रिएक्टेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ कोई भी चेंज करोगे किसी भी वेरिएबल ऑफ द रिएक्शन में, इट रिफर्ड एज द रेट ऑफ द रिएक्शन, चेंज ऑफ द रिएक्शन। सपोज यू हैव अ रिएक्शन दिस वन, रिएक्टेंट्स चेंजेस टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं। सपोज एट t इक्वल टू 0, व्हेन टाइम इज t इक्वल टू 0, सपोज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज C नॉट, ठीक है, और प्रेशर इज P नॉट इनिशियली, बट आफ्टर t टाइम व्हेन रिएक्शन चेंज और रिएक्शन अगर और यू कैन से रिएक्शन changes to the product, reactants changes to product, then after time t, when the concentration of reactants becomes Ct and pressure of the reactant becomes Pt. If it is gaseous state, then we can say we can take pressure, otherwise you have to take reactants. So rate of the reaction, what is the rate of the reaction according to the definition? Change in concentration or pressure with respect to time. So what should be the change in concentration? It is the Ct, final concentration at time t minus initial concentration C naught divided by time, मतलब final to initial difference कर लिए. So it will give you the rate of reaction with respect to concentration, with respect to pressure, with respect to number of moles. We can find out changes with respect to time. It is known as rate of the reaction. Now you know rate of the reaction, whenever asked with respect to reactant, always take negative. This negative sign of the reaction shows the disappearance. It shows disappearance of the reactant. नेगेटिव साइन देख लीजिए आप, आपको पता है ये C नॉट है, ये Ct है। T टाइम के बाद ये बना है ना Ct, तो Ct की वैल्यू तो कम होनी चाहिए। जब कम होगी तो ये डिफरेंस फाइंड करो, ये डिफरेंस हमेशा नेगेटिव में आएगा। रेट ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स, ठीक है, वही नेगेटिव साइन शो करता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। इफ वी टॉक अबाउट रेट ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, ऑलवेज टेक पॉजिटिव। देखिए, मान लीजिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इनिशियली तो 0 है, थोड़ी देर बाद कुछ प्रोडक्ट्स में कन्वर्जन होगी ना, कंसंट्रेशन मान लीजिए x बन गया, देन व्हाट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, x minus 0, that will give you the positive value. So rate of reaction with respect to product always take positive, rate of the reaction with respect to reactant always take negative. This is the graph of the reaction, changes of the concentration with time. If we talk about reactants, reactants concentration decreases with time, products which was initially 0, product concentration increases with time. So from here you can say this decrement shows the disappearance and this increment shows the product formation, that is the positive sign. This is the rate of the reaction overall for any given reaction. Now the main important part of this chapter is stoichiometry of the chemical kinetics. बेटा अगर आपको कभी कोई एक रिएक्शन दी हो, जैसे यहाँ पे दी गई है जनरल रिएक्शन A of A, B of B, C of C and D of D. So this is the reaction जो आपको गिवन है। इस रिएक्शन के लिए जरा समझना है आपने, ठीक है। फॉर दिस रिएक्शन यू नो small a, B, C and D are the
stoichiometric coefficients, and suppose A B ये स्क्वायर ब्रैकेट है, C and D in square brackets, these are the concentration of the reactants and products, ये मान लीजिए हमें गिवन है। देन बहुत ध्यान से समझना है, if ABCD are the stoichiometric coefficients and these are the concentrations of the reactants and products, बेटो आवाज बंद करो। Okay, so for this reaction, rate of reaction with respect to A के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, ध्यान से देखना, A B small ABCD are stoichiometric coefficients, so rate of reaction with respect to A, whenever you have to find out, always write minus sign for the rate of decrement, concentration decrease with the time of the reactants, delta A over delta T, delta A over delta T is the change in concentration with time of A। किसी भी रिएक्शन का रेट विद रिस्पेक्ट टू ए ये आएगा, विद रिस्पेक्ट टू बी इट इज -1/b डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, ये है। माइनस साइन इंडिकेट्स द रेट ऑफ डिसअपियरेंस फॉर द रिएक्टेंट्स। इफ वी टॉक अबाउट प्रोडक्ट्स, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सी, टेक पॉजिटिव साइन, दैट इज द फॉर्मेशन 1/c stoichiometric coefficients and then change in concentration with unit time interval। Similarly, rate of reaction with respect to D, it is +1/d delta D over delta T। इस तरीका से हम किसी भी रिएक्शन में उसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के रिस्पेक्ट्स में रेट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। किसी भी रिएक्शन का रेट, ध्यान देना, रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन का रेट जो कि ये है, इस रिएक्शन के लिए किसी के भी रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करो, रेट ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू बी ऑलवेज इक्वल। रेट ऑफ दिस रिएक्शन कैन बी रिटन एज -1/a डेल्टा A ओवर डेल्टा T। डेल्टा A ओवर डेल्टा T हम लिखेंगे फॉर द एवरेज, अगर ये इंस्टेंटेनियस स्पीड होती तो dA/dt लिखते। दिस इक्वल टू -1/b डेल्टा B ओवर डेल्टा T, it is equal to +1/c डेल्टा C ओवर डेल्टा T। ये सारी वैल्यूज बेटा बराबर होंगी। रेट ऑफ रिएक्शन किसी के भी रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करिए फॉर द गिवन रिएक्शन, ये सभी वैल्यूज इक्वल होंगी। रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, to B, to C, to D, ऑल वैल्यूज आर इक्वल, तो कई बार इनमें आपस में रिलेशन फाइंड आउट करने को आ सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे कि हमने अभी पढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन तो हो गया ये, बट कई बार ना किसी भी रिएक्शन के लिए ये दो टर्म और यूज होते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे कहीं लिखा होगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स। ऑब्वियसली हम ये देख रहे हैं कि रिएक्टेंट्स कम हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है। या फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन और अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स अपीयर हो रहे होंगे। अगर ये वर्ड्स यूज हुए हैं तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन से ये डिफरेंट टर्म्स हैं। रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट्स के रिस्पेक्ट में निकालो या प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में निकालो, ये जो फॉर्मूलेज मैंने आपको लिखे हैं इनके अकॉर्डिंगली इनकी वैल्यू हमेशा सेम होती है, ये सारे बराबर होंगे। बट जहाँ पे टर्म आ गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स, फिर ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, ये ओनली रिएक्टेंट्स का डिसअपियरेंस है, कन्वर्जन टू द प्रोडक्ट है। कैसे समझिए, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स में क्या फर्क है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट with respect to reactant A, it is always right minus delta A over delta T।
इसमें बेटा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लिखते, दैट इज अगर आप समझ पाए हो, देन व्हाट शुड बी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, चलो रिएक्टेंट्स का ही लिख लेते हैं, ऑफ रिएक्टेंट्स विद रिस्पेक्ट टू बी, बी की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगी, इट इज माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लिखते और ना ही ये जरूरी है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी सेम होंगे, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स पे डिपेंड करते हैं। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के पर यूनिट में ली गई है तो ये सभी वैल्यूज बराबर होंगी। आपने कभी भी लिखना हो किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन में सभी वैल्यूज बराबर होगी, चाहे किसी के भी रिस्पेक्ट में आप फाइंड आउट करिए, ऑल वैल्यूज आर इक्वल। लाइक दिस, तो सारी वैल्यूज बराबर होंगी, बट ये जरूरी नहीं है कि डिसअपीयरेंस बराबर हो। सिमिलरली व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन of a product with respect to C, इसमें प्लस साइन के साथ डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी लगा देना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लिखना है, बात समझ गए। और तब फिर आप इनमें आपस में रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं जिसपे न्यूमेरिकल्स होंगे। इस रिएक्शन के लिए एक और लिखते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट with respect to D plus delta D over delta D। अगली बात समझ में, ठीक है। ये रेट ऑफ रिएक्शंस हैं, ये म्यूचुअली इक्वल भी होंगे, ये म्यूचुअली इक्वल नहीं होंगे। ये तभी इक्वल हो सकते हैं बाय चांस अगर सभी के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स सेम हो या यूनिटी हो। सो वी कैन रिलेट What is the relation of rate of disappearance of A and rate of reaction? आप देखिए बहुत क्लियरली देख सकते हो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ये है, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए ये है। अगर आप किसी के भी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को उसका रेट ऑफ रिएक्शन बनाना चाहते हो तो उसमें उसी के करस्पॉन्डिंग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से यहाँ डिवाइड कर दो। नहीं समझे, आगे देखो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट बी ये है, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी ये है। इसमें और इसमें सिर्फ 1/b का ही फर्क है, स्मॉल b का, मतलब अगर मैं इसमें स्मॉल b से डिवाइड कर दूं तो ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं हो जाएगा, ठीक है। सो ये चीज ध्यान रखिएगा। या फिर रेट ऑफ रिएक्शन दिया है तो इसमें b से मल्टीप्लाई कर दो तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो जाएगा। सो वी कैन रिलेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू सी, इनमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स नहीं होते, डिसअपीयरेंस फॉर्मेशन जैसी वर्डिंग यूज होगी। रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सी इज दिस, अगर मैं इसमें स्टोइकियोमेट्रिक सी से मल्टीप्लाई कर दूं तो सी कैंसिल हो जाएगा, नाउ इट बिकम्स इक्वल टू दिस वन, दैट मींस वी कैन रिलेट बोथ फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सो लेट्स सी, ध्यान से देखना। अब मैं दोबारा से पूरा रफ करके आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपकी एक बार और प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। सपोज अगेन फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए, ठीक, मैंने कहा रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज व्हाट, you have to say -1/a delta A over delta T, ठीक है। Rate of reaction with respect to B, it is -1/b delta B over delta T. Rate of reaction with respect to C, it is +1/c delta C by delta T. Rate of reaction with respect to D, it is +1/d delta D over delta T. Plus sign indicates the formation, negative sign indicates the what? Disappearance.
ठीक है, बट दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये सारी वैल्यूज आपस में बराबर भी होंगी। So when you want to write rate of reaction with respect to any one of all these, then it is minus 1 minus 1 over a divided by delta a over delta t. It's a change in concentration of a with respect to time, minus 1 by b delta b over delta t, change in concentration of b with respect to time, 1 over c delta c over delta t, and this is plus 1 over d डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। अब ध्यान से समझनी है आपने चीजें और रिलेशन भी देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट की बजाय मैं कहूँ व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आपको अभी सिखाया डिसअपीयरेंस में सब कुछ यही लिखना है, बट स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मिस कर देना है। सो यू गेट it is minus delta a over delta t। ठीक है, अब आप देखो रेट ऑफ रिएक्शन था ये, ए का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है ये। अगर मैंने इन दोनों में रिलेशन बनाना हो तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, इट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाई ए। अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो तो वो ये होगा, इसमें a से मल्टीप्लाई कर दोगे कैंसिल हो जाएगा, क्या ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे? समझ गए? सिमिलरली रेट ऑफ डिसअपीयरेंस with respect to b, it is minus delta b over delta t. Can you relate it with the rate of reaction? Obvious, it's a rate of reaction। b के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन ये आएगा, इसमें इसी के करस्पॉन्डिंग स्टोइकोमेट्रिक से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आपको हालांकि रेट ऑफ रिएक्शन सभी बराबर है, कोई भी वैल्यू दी हो वो वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, बट मल्टीप्लाई उसी के कोएफिशिएंट से करना है जिसके रिस्पेक्ट में आप फाइंड आउट कर रहे हैं। फिर से सुनिए, रेट ऑफ रिएक्शन तो सभी बराबर होते हैं, तो आप कोई भी वैल्यू यहाँ पुट कर दो या यहाँ पे, बट जिसका आप डिसअपीयरेंस या फॉर्मेशन निकाल रहे हो उसी के करस्पॉन्डिंग स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ही मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे ए है तो ए से, यहाँ बी है तो बी से। क्या आप बता सकते हो रेट ऑफ फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू सी लिखना हो तो क्या लिखना चाहिए था, डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी। अगर मैंने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा। ठीक है, ये है। वैसे आप किसी के भी रिस्पेक्ट में रख दो, वैल्यू सभी की रेट ऑफ रिएक्शन सेम होगी, बट अगर मैं ऐसे लिखता और इसको मुझे सिर्फ इतना चाहिए तो सी और सी कैंसिल करता, तो मैं इसके करस्पॉन्डिंग स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कुछ ऐसे रिलेशंस मिलेंगे, इन पे न्यूमेरिकल्स भी होंगे। समझ गए कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इनसे रिलेटेड स्टोइकोमेट्री ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स के बेसिस पर क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। सपोज एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज वी हैव अमोनिया 5O2, it gives 4NO and 6 water। मान लीजिए ये रिएक्शन है, गैसियस रिएक्शन है, ये गैसेस है। अगर मुझे इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होता, रेट ऑफ रिएक्शन it is minus 1/4 change in concentration of ammonia over time interval। It is the with respect to ammonia। With respect to oxygen it is minus 1/5 delta O2 over delta T। With respect to NO it is plus 1/4 delta NO over delta T। Stoichiometric coefficients तो ले नहीं होते। It is also equal to 1/6 of delta H2O over delta T। इसमें से मुझे कोई भी वैल्यू दी हो उसके रिस्पेक्ट में मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकता हूँ। हालांकि ध्यान रखना, इसमें जो माइनस डेल्टा NH3 ओवर डेल्टा T है, इट शोज ओनली
रेट ऑफ डिसअपीयरेंस विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया, ये इसको शो कर रहा है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा आपके मुताबिक, बोलिए। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन लिखना चाहते हो, सो इट शुड बी माइनस डेल्टा O2 ओवर डेल्टा टी। तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही तो नहीं लिखना, बाकी तो सेम है। तो अगर आपको इसमें और रेट ऑफ रिएक्शन में रिलेशन निकालना, तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन ये है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यही मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज फॉर दिस वन। अगर इसको मैंने रेट ऑफ रिएक्शन के साथ रिलेट करना हो, तो मैं इसे रेट ऑफ रिएक्शन के साथ मल्टीप्लाइड बाई करस्पॉन्डिंग स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ O2 इज 5, तो मुझे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन में एक रिलेशन मिल जाएगा। अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए लिखना है, देन रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा मल्टीप्लाइड बाई इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, क्योंकि अगर मैं इसके रेट ऑफ रिएक्शन में 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये सॉल्व होकर इसके बराबर आ जाएगा। सो जब आप न्यूमेरिकल्स करो, इन चीज़ों को ध्यान दो। मैं वैसे कराऊंगा आपको अलग से एग्जांपल्स, बट दिस इज द थ्योरी ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन। नाउ व्हाट इज द ग्राफिकल एनालिसिस, graphical analysis of rate of reaction, और how can you determine graphically? तो ध्यान से देखिए, if we talk about for the reactants, concentration time graph is this। अगर बेटा मुझे कंसंट्रेशन और टाइम ग्राफ दिया है और मुझे कहा जाए कि राइट फाइंड करिए रेट ऑफ द रिएक्शन, तो मैं इसमें देखूंगा, मान लीजिए T1 टाइम पर कंसंट्रेशन है C1, T2 टाइम पर कंसंट्रेशन है C2, ठीक है। देन व्हाट शुड बी द रेट ऑफ द रिएक्शन, ऑब्वियसली गल है, फाइंड आउट दीज वैल्यूज, and rate of reaction is equal to C2 minus C1 divided by T2 minus T1. Change in concentration, final concentration at T2 time, initial concentration at T1 time, find out कर सकते हैं। वैसे अगर आप यहाँ पे ना कंसंट्रेशन की जगह स्पीड लिख लो, तो ये स्पीड और टाइम ग्राफ है, मतलब वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऐसे ही तो निकाल सकते हैं आप, इसलिए आप इसे एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन कह सकते हो, दैट इज डेल्टा C ओवर डेल्टा T। अगर इंस्टेंटेनियस लिखना है तो किसी टाइम पे जाना होगा, ठीक है। रिएक्टेंट्स के लिए ये स्लोप देख लो आप, नेगेटिव जा रहा है। फॉर इंस्टेंटेनियस, बेटा इंस्टेंटेनियस के लिए कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ जहां से शुरू हो रहा है और आपने जिस टाइम पे इंस्टेंटेनियस रेट निकालना हो, ठीक है, ये कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ है। आपने जिस टाइम पर, जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना हो, उस टाइम को आप आगे फॉरवर्ड कर दो, उस टाइम की करस्पॉन्डिंग टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए एंड फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप, रिमेंबर, slope of tangent give instantaneous rate of the reaction। ये मैंने आपको थोड़ा सा सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, थोड़ा सा मतलब डेप्थ में बता दिया कि अगर आप इसका स्लोप फाइंड आउट करते हो तो इंस्टेंटेनियस ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन आएगी, एंड इट इज नन अदर, इट इज अ डेल्टा C ओवर डेल्टा T। रिएक्टेंट्स के लिए ये रिएक्टेंट्स के ग्राफ है, तो ये ठीक है, नेगेटिव स्लोप जा रहा है। व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट्स, आप जानते हो प्रोडक्ट के लिए एवरेज में यही ग्राफ ऊपर चला जाएगा, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन है, ठीक है। और अब आप इन्हीं टाइम पे जिन पे फाइंड आउट करना चाह रहे हो, इन्हीं टाइम के करस्पॉन्डिंग न्यू कंसंट्रेशंस फाइंड करो, उसका स्लोप निकाल लो, ठीक है।
इंस्टेंटेनियस रेट के लिए भी जिस टाइम पे आपने फाइंड आउट, मान लीजिए मैंने इस टाइम पे फाइंड आउट करना है इंस्टेंटेनियस रेट, फिर इस टाइम पे हम स्लोप ड्रॉ करेंगे और डेफिनेटली आप देखो इसका स्लोप पॉजिटिव में आ रहा है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट वी टेक नेगेटिव, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट वी टेक पॉजिटिव. दिस इज द ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन. क्लियर? तो इस पे बेस्ड बेटा न्यूमेरिकल्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे जो हमने सॉल्व करने होंगे. सो इसे आप ट्राई करिए. ठीक है, ये मैंने लाइव लेक्चर में भी लगाया है और अभी आपको इस पे कुछ क्वेश्चंस भी करने को दिए हैं, वो न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करिए. होपफुली आपको समझ आ जाएगा. जो लाइव क्लास लगाई उनका तो रिवीजन हो जाएगा, बट फिर भी उसको देख करके अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है देन प्लीज़ कॉल मी. ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.